सूरज चौबे। सूरज चौबे, पढ़ाई हो रही है? हाँ। हम्म। उसके हम मैन्युअली मार्क्स देंगे। एक्चुअली वो टेक्स्ट बॉक्स में रखा था और उसने टेक्स्ट बॉक्स को लिया नहीं था। ठीक है। अभी तो हमने इसको रिलीज कर दिया है। मैन्युअली उसको अपग्रेड कर देंगे। सभी के साथ है, आप ही के साथ नहीं है। स्क्रीन विजिबल है। अब शायद हाँ आज है। समझदार तो तुम हो ही। बहुत कम लोग हैं आज, क्या बात है। 9 बज गया है। ISDN रिवाइज कर लीजिए एक बार सभी लोग। लास्ट 60 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ। So in last lecture, we discussed about the ISDN, its working, concept of ISDN. ISDN works on the concept of IDN, integrated digital network, and also discussed two channel ISDN channels, bearer channel or B channel, data channel or D channel. In continuous of ISDN channels, today discussing leftover part of ISDN channel, that is your H channel. H channel also known as hybrid channel. The hybrid channel are operated with data rate of 384 kbps. This channel, अरे भाई टाइमली आप लोग आइए, 9 बज गया है। Hybrid channel H channel are operated with data rate of 384 kbps known as H0 channel. There are a series of channels H0 to H12.
So this is known as H0 channel. There are 12 channels, 12 to 13 channel, H0 to H12. So in continuous, after increasing the data rate of H channels 1536 kbps is the H11 channel. As increasing the channel of this data rate 1536 is the capacity of H11 channel, and 1920 kbps you commonly used H12 channel, which is higher side of channel with higher bandwidth, 1920 kbps hybrid channel. This rate makes H channel or hybrid channel suitable for high data rate application such as used as video, teleconferencing and so on. Whenever you are discussing with video, chatting, conversation or teleconferencing, then these channels are required to transmit data from source to destination. तो सभी की लगभग अपनी अपनी कैपेसिटी है. जैसे बीआरआर का हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, 64 kbps होता है. बीआरआर में 64 kbps होता है. जो डेटा चैनल है वो 16 और 64 दो वेरिएशंस में अवेलेबल है. एंड द हाइब्रिड ये जो है 384 से लेकर के 1920 यानी H0 चैनल से लेकर के H12 तक जिसकी स्पीड होती है, डेटा रेट की स्पीड होती है, वहां तक ये सर्विस प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट ISDN सर्विसेज. देखिए ISDN बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा. 3 to 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. इसमें सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय ISDN, डिस्कस द वर्किंग ऑफ ISDN, जिसमें कि आप ISDN क्या होता है वो बताएंगे, उसकी वर्किंग बताएंगे, साथ ही साथ IDN का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ISDN का एस्टेब्लिशमेंट, सर्किट एस्टेब्लिशमेंट, दो डायग्राम बनाए तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे. सेकेंड क्वेश्चन जो आ सकता है सिर्फ 5 नंबर का अगर आएगा किसी एक पार्ट में तो कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं IDN का, या ऑन विच कॉन्सेप्ट ISDN वर्क्स आउट. तो IDN का कॉन्सेप्ट आपको डायग्राम से फ्रेम कर करके लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा. थर्ड क्वेश्चन जो आपका इसमें फ्रेम हो सकता है वो होता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ISDN चैनल्स, जिसमें कि आप बीआरआर चैनल, बी चैनल, डेटा चैनल, डी चैनल और हाइब्रिड चैनल या H चैनल को एक्सप्लेन कर देंगे. और फोर्थ क्वेश्चन आएगा सर्विसेज ऑफ ISDN. सर्विसेज कौन कौन सी ISDN प्रोवाइड करता है. तो there are 3 services provided by ISDN. First one is BRR services. Second one is tele services. And third one is supplementary services. Three services: BRR services, tele services and supplementary services. First one is BRR services. First one is BRR services. As name suggests, BRR services provide the means to transfer information in the term of, suppose करिए, speech, your data, your voice. So transfer the information in the term of speech, data or voice between users real time and without alteration of the content of the message. Thus these services correspond to the lower 3 layers of OSI model. Lower 3 layers: physical layer, data link layer and network layer. Whenever you discuss any concept or protocol, it is necessary to associate these protocols
to any of the layer in OSI reference model, or vice versa. Whenever you discuss working or functionalities of any layer, physical to application layer, the example, the applications, the practical explanation of these layers, तो वो किसी किसी प्रोटोकॉल या सर्विस के फॉर्म में आएगा. ठीक है. तो these services correspond to the lower three layer of OSI model. Circuit switching, packet switching, frame relay and cell relay are some of the basic services considered in the category of bearer services. जो सर्विसेज बियरर की जो एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ बियरर सर्विसेज की हो सकती है, इसमें सर्किट स्विचिंग है, स्विचिंग की सारी टेक्निक लगभग, पैकेट, प्रज्ञा बहुत लेट हो गया है, फ्रेम रिले which will be discussed in later in working of data link layer in detail, and cell relay. ये सब इसकी कुछ कॉमन सर्विसेज होती हैं आपकी बियरर सर्विसेज से. सेकेंड इज टेली सर्विसेज. बहुत अच्छे से आज का लेक्चर भी पढ़िए, मे बी देयर इन आपका जो सरप्राइज टेस्ट, इस लेक्चर से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं. टेली सर्विसेज कंबाइन द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर प्रोसेस फंक्शन विद द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फंक्शन. दे एम्प्लॉय बेयर सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट डेटा. इन एडिशन प्रोवाइड अ सेट ऑफ हायर लेयर फंक्शंस. हायर लेयर आपकी होती है 4 लेयर्स, जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर. इन सम बुक जो आपको मिलेगा कभी कभी किसी किताब में, फिजिकल डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर को लोअर लेवल जो है लेवल की लेयर्स कॉम्बिनेशन है, एंड सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हायर लेयर, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर इज मैकेनिज्म बिटवीन या इंटरफेस बिटवीन अपर एंड लोअर लेवल. Whenever we divide or segregate the whole or 7 layers, तो इसमें हमने 2 कैटेगरी बना के रखी हुई है. उस केस में in the concept of ISDN services, 3 lower level physical data link and network layer known as lower level layer, and 4 जो बची हुई है जो है आपका ये इंटरफेस, इसको भी अपर लेयर में ही कंसीडर कर लिया गया है. ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, इनको हमने अपर लेयर में कंसीडर किया हुआ है. बट किसी न किसी कॉन्सेप्ट में आपको इन तीनों को भी अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, जिसमें कि 3 लोअर लेवल की लेयर होगी, ऊपर की 3 लेवल होगी, और बीच में इंटरफेस आपका ट्रांसपोर्ट लेयर की तरह वर्क करता है. ओके, सो व्हेन bearer service provide defined requirement for and are provided by network function, tele services include terminal as well as network capabilities. For example, बहुत पूछा जाता है इसका टेलीटेक्स. तो इसकी सर्विसेज हैं वो टेलीटेक्स, टेलीफैक्स, वीडियो टेक्स, टेलेक्स. ठीक है, ये सब सर्विसेज जितनी भी टेक्स करके होती हैं वो, और खासकर टेली वर्ड जहां पे जुड़ा हो वो आप समझ के चलिए कि वो टेली सर्विसेज है. भाई बियरर की तो कॉमन हो गई, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, फ्रेम रिले, सेल रिले. लेकिन यहाँ पे जितनी भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात जहां पे होती है, यानी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्योरली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द टेली सर्विसेज. सो टेलीटेक्स प्रोवाइड्स एंड टू एंड टेक्स्ट communication using standardized character sets, presentation format and communication protocol. The higher layer attributes are based on those of these standardization. User information is provided over a B channel, signaling provided over the D channel. तो मेन जो इसमें चैनल यूज होते हैं, these are D channel, data channel and
आपका जो ये वाला होता है बी चैनल बियरर, सेकेंड है टेलीफैक्स. These all are services of teleservices. Telefax provides end-to-end facsimile communication using standardized picture coding resolution. देखिए पिक्चर, ये ध्यान रखना होगा कि किसमें कौन कौन सी सर्विसेज में क्या क्या जा रहा है. कोडिंग, ठीक है, रिजोल्यूशन. फर्स्ट वन में कैरेक्टर सेट जाता था, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट एंड आल्सो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि टेलीटेक्स में आता था. टेलीफैक्स में आपका पिक्चर जाएगा, कोडिंग, रिजोल्यूशन एंड आल्सो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. I will send detailed note of these services and communication protocol. The high layer attributes are based on the facsimile group 4 recommendations of the different standardization. हम लोग का जो कॉमन स्टैंडर्डाइजेशन था, जो हम लोग का इसमें टेलीफोनी और उसमें था, उसको हम लोग ने बताया था CCITT, कंसल्टेटिव कमिटी फॉर इंटरनेशनल टेलीग्राफी एंड टेलीफोनी. CCIT. Next services is video text. इन सर्विसेज को बहुत अच्छे से नाम से रिकॉग्नाइज कर लीजिए. Whenever in quiz or any test there are provision of more than one correct answers, इस तरह के क्वेश्चन का भी प्रोविजन है. वहां पे इस तरह की सर्विसेज में कहीं कोई थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, सिनोनिम्स करके भी दिया जा सकता है. तो यू मस्ट बी श्योर अबाउट आंसर. जब मल्टीपल चॉइस के आप क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर देते हैं, तो एक तो होता है जिसमें ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, और एक में होता है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन. तो वहां पे पूरे भी सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं. ये ध्यान रखना है. तो उस केस में ये श्योर होना पड़ता है. तो इट इज नेसेसरी टू डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ सर्विसेज. इसमें क्वेश्चन जो बन सकता है वो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा. सो इन एज नेम सजेस्ट वीडियो टेक्स्ट, दिस इज इनहेंसमेंट ऑफ टेक्सटिंग वीडियो सर्विसेज विद रिट्रीवल एंड मेल बॉक्स फंक्शन फॉर टेक्स्ट एंड ग्राफिक. इसमें पहली बार हुआ कि टेक्स्ट और ग्राफिक कॉम्बिनेशन जो है वीडियो टेक्स्ट में एज ए वीडियो फॉर्म में सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ है. आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई. टेलेक्स एडवांस वर्जन है, प्रोवाइड्स इंटरैक्टिव टेक्स्ट कम्युनिकेशन. द डिजिटल सिग्नल फॉलोज द इंटरनेशनली agreed recommendation for telex of different ISDN physical layer and also data link layer, network layer, जो कि लोअर लेवल की लेयर है, इनसे कंबाइन करके यूजर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड ओवर सर्किट स्विच्ड और पैकेट मोड बियरर चैनल सिग्नलिंग प्रोवाइड द टी चैनल आल्सो. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बियरर सर्विसेज ऑलवेज एज कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल्स के उसमें रिजोल्यूशन हाई कर करके और एडवांस वर्जन ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग टेलेक्स. थर्ड सर्विसेज है आपकी सप्लीमेंट्री सर्विसेज. थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री सर्विसेज. Supplementary services used in conjunction with one or more of the bearer service और टेलीविजन सर्विसेज. मतलब ये जो है कॉम्बिनेशन होता है बियरर सर्विसेज का एंड टेली सर्विसेज का. तीसरी टाइप की जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बियरर सर्विसेज एंड टेली सर्विसेज एज पर द नीड ऑफ यूजर. It cannot be used alone.
मीन सप्लीमेंट्री का नाम ही हो गया कि ये कॉम्बिनेशन में ही चलेगा, इसमें बियरर और टेली सर्विसेज भी कंबाइन करके चलेंगे। अब वो 1 और 2 बियरर सर्विसेज विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 टेली सर्विसेज और वाइस वर्सा, डिपेंड करता है। ओके, इट कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। फॉर एग्जाम्पल, जो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो है रिवर्स चार्जिंग। एग्जाम्पल यू कैन एक्सप्लेन रिवर्स चार्जिंग। Reverse charging can be used to reverse charges on a circuit switched call or packet switched virtual call. Reverse charging can also be used with the tele services such as the message handling service to create a collect message। जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है ना कलेक्ट मैसेज का, तो ये टेली सर्विसेज का है। और साथ ही साथ जो सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग है, ये सर्विसेज है आपकी बेरर सर्विसेज की। मैसेज स्विचिंग जो आती है वो टेली सर्विसेज में आती है। तो वेन एवर यू सेंड द मैसेज बाई इस्टेब्लिशिंग द सर्किट। अभिषेक विश्वकर्मा टू मच लेट। अभिषेक क्या हो गया? चलिए, सो circuit switch and packet switch are the services of BRS services and the message switch is the service of tele services. So whenever reverse charging concept, data can be sent to the destination and we collect the message in the form of store and wait. So this is the practical example of supplementary services. This is all about ISDN. ठीक है, तो लगभग फर्स्ट यूनिट आपकी कंक्लूड हो रही है। बट टुडेज जो लेक्चर इसमें और आगे के 2 लेक्चर में आई विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड आल्सो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एंटायर यूनिट। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, वट एवर इन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या सब्जेक्टिव टाइप, उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और आप भी इस चीज के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। उसी के कंटिन्यूएशन में एंड आल्सो यूजफुल इन सेकेंड यूनिट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शनलिटीज ऑफ डेटा लिंक लेयर। जब भी हमने बात की यहाँ पे फंक्शनलिटी डिस्कस की, उसमें हमने कहा कि जो डेटा है वो आपका पैकेट या फ्रेम के फॉर्म में जाता है, तो वो ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, वो ट्रांसमिशन से पहले हमको उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और उसके टाइप्स वगैरह सब पहले से एनालाइज कर लेंगे। उसमें कॉन्सेप्ट होता है डेटा ट्रांसमिशन का। मतलब whenever we exchange data from sender to receive, data transmission is concept followed। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कितने टाइप से ट्रांसमिशन आप कर सकते हैं, और जो पैकेट्स होते हैं जिनको हमने बताया बिट के फॉर्म में जाता है, डिजिटल फॉर्म में जाता है, वो किस तरह से एक्चुअल में ट्रेवल करता है, वो पैकेट का जनरेशन किस तरह से होता है, उसकी पैकेट का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह होता है, उसकी पूरी वर्किंग को, कॉन्सेप्ट को हमको एनालाइज करना, समझना है। क्योंकि जैसे डिंक लेयर की बात होगी वहां पे इतना डिटेल में नहीं, वहां पे तो उसकी पर्टिकुलर वर्किंग समझिए, लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ सेंडिंग द प्रोसेस, तो उसको किस तरह से पैकेट अरेंजमेंट क्या होता है वो पहले समझ लेना जरूरी है। सो डेटा ट्रांसमिशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ techniques to transmit data from sender or source to destination. First one is parallel. Parallel transmission. देखिए जितना भी डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में जाता है। बाइनरी मीन्स 1 and 0s. So in parallel transmission, binary data consisting of 1s and 0s may be organized into groups of bits. Parallel transmission means that a group of bits is transmitted simultaneously by using a separate line or wire for each bit. For example, जैसे ये सपोज करिए आपका सेंडर डिवाइस है, ये सेंडर डिवाइस है आपका,
ये आपका रिसीवर डिवाइस है, दिस इज योर रिसीवर डिवाइस। ओके, यहां से लेकर के यहां तक आपको डेटा सेंड करना है। और डेटा जैसे सपोज करिए मैं लिख दे रहा हूं, जैसे 1 है, 0 है, 1 है, 0 है। वैसे तो वो एक बाइट फॉर्म में होता है, क्योंकि एक फ्रेम में एटलीस्ट जो फ्रेम होता है और जो सुटेबल होता है उसमें 8 बिट होते हैं, 1 बाइट का होता है। एंड आल्सो अभी हम लोग लेटर पार्ट में डिस्कस भी करेंगे, इसमें एक स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट भी इंक्लूड होती है। वो डिपेंड होता है, जो जब भी डिस्कशन करेंगे पैरेलल और सीरियल दो तरह के होते हैं, उसमें किस तरह का अरेंजमेंट होता है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए ये 4 बिट है, इनको हमने ट्रांसफर करना है। ठीक है, जो हाफ बाइट का है तो वो डेटा जाना है, लेकिन हाफ बाइट इज नॉट एक्सेप्टेबल और कंसिडरेबल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, क्योंकि इतना कम डेटा के लिए सर्किट एस्टेब्लिश करना या कोई भी टेक्निक यूजफुल नहीं है इसमें। तो इससे तो ज्यादा अच्छा है कि आप डेटा को कंबाइन करिए और जब बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा उसके साथ इसको भेज दीजिए विद कॉम्बिनेशन ऑफ सम एक्स्ट्रा बिट्स यूजिंग द आल्सो कॉन्सेप्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो यहाँ पे जब इसको सेंड करेंगे तो सेपरेट एक पैरेलल लाइन जा रही है। तो पैरेलल ट्रांसमिशन है, मतलब हमने क्या किया कि सेंडर से रिसीवर के लिए ये जो बिट्स जा रही है ये सिंगल बिट्स, ये हो सकता है पूरा कंप्लीट डेटा हो लेकिन ये बिट के फॉर्म में जा रहा है। तो ईच एंड एवरी बिट को सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट करने के लिए हमने सबके लिए सेपरेट कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। यानी इस वाले कनेक्शन में 1 बिट जाएगी, इस वाले कनेक्शन में 0 बिट जाएगी, इस वाले कनेक्शन में वायर के थ्रू 1 जाएगी, इस वायर के थ्रू 0 जाएगी। तो जो इस तरह का ट्रांसमिशन होता है, दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज पैरेलल ट्रांसमिशन, बिकॉज एंटायर बिट्स, ठीक है, बट वो अलग बात है कि ये पूरा एक मैसेज की सेपरेट बिट्स है, लेकिन इनके लिए भी जब हमने मैकेनिज्म यूज किया तो पैरेलली जो है कनेक्शन सबके स्टेब्लिश किए, सबके लिए सर्किट स्टेब्लिश किए और डेटा आपका वहां पे पहुंचा दिए। Parallel transmission are commonly used when the distance between the two devices are short and it is also sophisticated and urgent basis। ये ध्यान रखना है, शॉर्ट होता है और बहुत सोफिस्टिकेटेड डेटा है, अर्जेंट जाना है, तभी इस तरह का आप कॉम्बिनेशन या ट्रांसमिशन यूज करते हैं। सेकंड होता है इसी में सीरियल ट्रांसमिशन। Serial transmission. Serial transmission means that a group of bit is transmitted one by one using one line या वायर जो भी आपने स्टेब्लिश किया है फॉर ऑल बिट्स। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक आपकी सेंटर मशीन है, ये आपकी एक रिसीवर मशीन है, ठीक है। ये आपका डेटा यहाँ ट्रांसफर होने वाला है। तो ये जैसे 0 1 1 0 1 1 1 0, ये आपका जो डेटा है ये कंप्लीट, ये पूरा पूरा एक साथ चला गया, एक ही वायर के थ्रू चला गया पूरा 1 बाइट का। ठीक है, वहां पे तो हमने डायग्राम छोटा बनाया था कि शॉर्ट फॉर्म में डेटा जा रहा है। तो सबके लिए इन दिस एग्जांपल फॉर ईच बिट सेपरेट लाइंस आर एस्टैब्लिश्ड, सर्किट आर एस्टैब्लिश्ड, बट इन सीरियल ट्रांसमिशन सेंडर टू रिसीवर जो आपका ट्रांसमिशन हो रहा है ये एंटायर बाइट जो है, ये पूरा डेटा जिसमें कि 8 बिट इंक्लूड है, वो एक ही सीरियल लाइन पे आपका ट्रेवल कर रहा है एंड सेंडर टू रिसीवर सीधे आपका सेंड हो जा रहा है। तो सीरियल ट्रांसमिशन इज चीपर एंड मोर रिलायबल देन पैरेलल ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि पैरेलल ट्रांसमिशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अर्जेंट बेसिस एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड डेटा आर to be sent from sender to receiver, but in serial transmission it is cheaper and more reliable than parallel transmission over long distance।
it also slower because the bits are sent one at a time. डेफिनेटली पूरा पूरा बिट एक ही लाइन पे ट्रेवल कर रही है, तो इसकी स्पीड कंपैरिजन टू पैरेलल ट्रांसमिशन स्लो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्दर ट्रांसमिशन. सीरियल ट्रांसमिशन, जिसमें कि आपका होता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, और सेकेंड वन इज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन. ठीक है, ये दो टाइप का होता है. ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इसी में आपको एक्चुअल बताएंगे कि बिट किस तरह से जा रहा है, उसका ओरिएंटेशन किस तरह से होता है, अरेंज किस तरह से होता है दोनों मोड में, पैकेट ट्रैवल किस तरह से होता है. इट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. अटेंडेंस हम आपकी गूगल फॉर्म के थ्रू कलेक्ट कर लेंगे और 9:30 पे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. So best of luck for your test.